Welcome champs to English Ka Potli and I am Abhijit Rakshit. Today I am going to teach you the English lesson of CBSE class 10 from the book First Flight. Okay, the first lesson and the name of the lesson is A Letter to God. Chalo, story ko padhte, bahut mazedar story hai. Come on, let us proceed with the story. Therefore, this is the story A Letter to God. It is written by G.L. Fonts. Come on, let us start with the story. Chalo. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Means पूरा valley में एक ही घर था, which was on the crest of a low hill. Crest of the low hill means crest means on the top of a hill. छोटा सा एक hill था, उसका ऊपर ये घर था. From this height, one could see the river and the field of ripe corn. And from here, you are able to see the field of ripe corn, dotted with flowers that always promised a good harvest. तो यहाँ पर जो फसल होता था means the agriculture which used to take place is a very good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अभी जो जरूरत का एकदम चीज है, you need a downpour means जोरों का एक बारिश का जरूरत है. अगर जोरों का बारिश नहीं भी होता है, at least a shower means a drizzle means थोड़ा थोड़ा अगर बारिश भी होता है, that is also enough. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, means Lencho को अपना field का बारे में intimately पता है, means he very much acquainted with the field, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो सुबह से लेके क्या कर रहे थे, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन he was see the sky towards the northeast sky का तरफ वो देख रहे थे. Now we are really going to get some water, woman. तो अपना wife को बोलते हैं कि today we are going to get some water. The woman was preparing supper तैयार कर रहे थे, रात का खाना. supper replied, yes, God willing, अगर भगवान चाहते हैं तो जरूर बारिश होगा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, and until the woman called to them all, come for dinner. तो सबको डिनर में बुलाते हैं, means it is already night time. It was during the meal that just as Lencho had predicted, means predicted का मतलब क्या है champs? Predicted का मतलब भविष्यवाणी, to tell anything, to means to foretell anything. जैसे Lencho बोले थे कि आज बारिश होने वाला है, big drops of rain began to fall. बड़े बड़े rain drops गिरना शुरू हो गया. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. बड़ा पहाड़ का जैसा clouds आना शुरू कर दिया. It has already started to approach. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. हमारा लेंचो जी बाहर जाते हैं, और क्यों बाहर जाते हैं? Just to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो rain drops उनका बॉडी में गिरे, इसका मजा या इसका आनंद लेना चाहते थे. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky. They are new coins. तो why these are new coins? ये क्यों new coins? This is a comparison. It's a metaphor. ये जो फसल था, ये फसल अगर रेन ड्रॉप्स गिरेंगे, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विद द न्यू कॉइन्स, मींस ये रेन ड्रॉप्स है. ओके चैम्प्स, दीज आर द रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स को कहा जा रहा है दीज आर न्यू कॉइन्स. न्यू कॉइन्स क्यों है? सपोज अगर बहुत अच्छा बढ़िया बारिश होता है, देयर विल बी अ वेरी गुड कल्टीवेशन. अगर बढ़िया कल्टीवेशन होता है तो इसको बाजार में बेचेंगे और अच्छा मुनाफा होगा, एंड देयर विल बी अ गुड प्रॉफिट एंड दे कैन अर्न अ लॉट. The big drops are 10 cents and the little ones are 5. बड़े बड़े drops 10 cents का है and जो small drops वो 5 cents का है. The satisfied expression regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो उसने देखा कि वो उसका जो ripe corns है, जो flowers of the ripe corns, it was already covered with raindrops. Okay, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. बारिश तो हो रहा था, लेकिन अचानक क्या होता है, बड़े बड़े लार्ज साइज हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो गया. चैम्स, हेल स्टोन्स क्या होते हैं? हेल स्टोन्स मीन्स बर्फ का गोला जो ऊपर से गिरते हैं आसमान से. दे आर नोन एज द हेल स्टोन्स. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. ये सही में न्यू सिल्वर कॉइन्स का जैसा देयर साइज वाज देयर. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. तो बाहर तो सभी बच्चे लोगों जो था, उन लोगों ने क्या किया, बाहर दौड़े
to collect the frozen pearls, means to collect the hailstones. It is really getting bad now, exclaimed the man. अब लेंचो को पता चल गया कि यार hailstones अगर गिरता है तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, the whole crops will be destroyed. I hope it passes quickly. तो उसने विश किया कि यार ये hailstones जल्दी से खत्म हो जाए. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillsides, the cornfield, on the whole valley. पूरा वैली का ऊपर hailstones गिर रहे थे. The field was white as if covered with salt. पूरा जो field था वो पूरा it became white as if कोई salt से cover किया गया है. Not a leaf remained on the trees. जितना भी trees था सबका पत्ता झड़ गए थे. Means all the leaves of the trees they were shed. The corn was totally destroyed और corn पूरा बर्बाद हो गया था. The flowers were gone from the plants. लेंचो सोल was filled with sadness. तो अब देखिए इतना अच्छा बढ़िया फसल हुआ था, रेन के लिए वो वेट कर रहा था, लेकिन रेन का जगह में hailstones आ जाता है तो anybody will be very much depressed. अब लेंचो was also very depressed. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब ये storm खत्म हो गया, फील्ड का बीच में जाके अपना सन्स को कहते हैं, a plague of locust. You know locust is a insect. ये बड़े बड़े insects होते हैं and they come and they destroy the crops. ये आके crops को destroy करते हैं. Now Lencho is telling a plague of locust would have left more than this. अगर locust का भी अटैक होता तो इससे थोड़ा ज्यादा बच जाता था फील्ड, लेकिन hailstones के कारण पूरा ही फील्ड बर्बाद हो गया. The hail has left nothing. The hails का कारण कुछ भी बचा नहीं, खत्म हो गया फुल. It is completely destroyed. This year we will have no corn. इस साल हमारा कोई corn नहीं होगा. That night was a sorrowful one. It was a very sad night. All our work for nothing. इतना महीना से we have worked for so many months and ultimately what happened? It is nothing. कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा, पूरा जो मेहनत है वो बेकार हो गया. There is no one who can help us. अभी तो हम लोगों को हेल्प करने के लिए nobody is there. कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हमारा. We will all go hungry this year. इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. But in the hearts of all who lived in that solitary का मतलब चैम्स आप लोगों ने लिख लीजिए, इसका मतलब है lonely. Solitary means lonely. Followed Lonely. Lonely. It will be it will be E. Okay. Lonely. Lonely house in the middle of the valley. There was a single hope. एक ही hope बचा हुआ था. And that hope was help from God. भगवान से अगर कुछ help मिल जाता तो सही रहेगा. Otherwise no help is possible. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember no one dies of hunger. देखिए आप upset मत हो जाइए. Who is telling this one? His wife. His wife is telling, see, don't be upset. आप इतना upset मत हो जाइए. Don't be so very depressed. इतना दुखी मत हो जाइए. देखिए no one dies of hunger. भूखा कोई मरता नहीं है. That's what they say. No one dies of hunger. तो लेंचो बोलते हैं आपने सही कहा कि कोई भी हंगर से भूख में कोई मरते नहीं है. All through the night लेंचो thought only of his one hope, the help of God. तो सारा रात बैठ के लेंचो सोचते हैं और उसे क्या सोचते हैं कि एक ही जन उनको हेल्प कर सकते हैं, and that is no other than God itself, whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Means भगवान का आंख से कुछ नहीं छिपता है, भगवान हर चीज देख सकते हैं. इवन जो मन में हम लोग सोचते हैं, वट एवर वी थिंक इन आवर इनर सोल, मीन्स द इनर सेंस. conscience मीन्स इनर सेंस. जो हमारा मन में जो हम लोग सोचते हैं भगवान उसे भी देख सकते हैं. भगवान God can see that one also. Lencho was an ox of man. Ox of man means, you know what is the meaning of champs? Ox of man. He is a very hard working man. बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे. Working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो को पढ़ना लिखना आता था. He can write. He was a literate person. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो दूसरे जो संडे थे, आने वाला संडे में, he has written a letter. He began to write a letter
और वो क्या किया, उस लेटर को लेके इस कैरेट द लेटर टू द टाउन, शहर में जाते हैं, एंड प्लेस इन द मेल। तो पहले पोस्ट बॉक्स में अभी उनको डालना था, पोस्ट ऑफिस में जाना था, पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प खरीदना था। तो वो सोचे कि चलो मैं शहर चले जाता हूँ, वहां पर पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प खरीद लेते, फिर स्टैम्प लगा के पोस्ट कर देता हूँ। तो अभी का जैसा तो उस समय में दिस व्हाट्सएप एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट तो हुआ नहीं करता था ना, तो लेटर ही भेजना पड़ेगा गॉड को। एंड इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो भगवान के लिए लेटर है, और तो ये लेटर मुझे ही लेके पोस्ट करना पड़ेगा। See what he has written, champs. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान, आप अगर मुझे हेल्प नहीं करते तो मैं और मेरा फैमिली बिना खाए, इस साल हम लोगों को बिना खाए रहने पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। उसने ये नहीं बोला कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं सारा साल वो पैसा मैंने उस पैसे से गुजारा करूंगा, नहीं। सी इज सच ए टाइप ऑफ पर्सन, इज सच ए टाइप ऑफ हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। वो कहते हैं कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए। पेसो मीन्स इट इज अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का एक एक तो करेंसी है, जैसा हमारा रुपीज है। तो भगवान से बोलते आप मुझे 100 पैसों दे दीजिए, और फिर मैं ये मेरा जो जमीन है उसमें मैं फसल बोऊंगा। मीन्स आई एम गोइंग टू सो द सीड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, बिकॉज द हेल स्ट्रॉम। और यहां पर पूरा बात नहीं कहा है हमारा ऑथर जी ने, दैट मीन्स यही बताया होगा कि हेल स्ट्रॉम्स आया था और मेरा पूरा जो फसल था वो पूरा बर्बाद हो गया, एंड दैट इज व्हाई आई विल नॉट बी एबल टू सेल द क्रॉप्स इन द मार्केट एंड वी हैव टू लिव अंडर हंगर। ही रोट to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. तो फिर लेटर को एनवलॉप में डालते हैं, पुट द लेटर को इनसाइड में डालते हैं एनवलॉप का, और शहर चल जाते। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, एक स्टैम्प लगाते हैं लेटर का ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में लेटर को डाल देते, पुट्स द लेटर इनसाइड द मेल बॉक्स। वन ऑफ द एम्प्लॉइज वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। तो एक व्यक्ति था, एक एम्प्लॉय, तो वो पोस्टमैन था, ही वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में काम भी करते थे, हेल्प करते थे। वेंट टू हिज बॉस, अपना बॉस का पास जाते हैं, लाफिंग हर्टिली, यानी लाफ्स अ लॉट, बहुत जोर जोर से हंसते हैं, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और पोस्ट मास्टर जी को जाके ये लेटर दिखाते हैं, देखिए सर ये है लेटर, इट इज एड्रेस टू गॉड, भगवान का एड्रेस में किसी ने लेटर को पोस्ट करके गया है। Never in his career as a postman had he known that address। तो अपना पोस्टमैन का करियर में कभी ये भगवान का क्या एड्रेस है, yes never known, उन्हें नहीं पता था। The postmaster, a fat, amiable, you know champs what is the meaning of amiable? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, it is having a friendly and pleasant, means बहुत ही फ्रेंडली टाइप का आदमी थे हमारा पोस्टमास्टर जी। Amiable fellow also broke out laughing। तो पोस्टमास्टर also broke out laughing, but almost immediately turned serious। लेकिन हंसने के साथ साथ तुरंत थोड़ा सीरियस हो जाते, become serious। Immediately means very fast, immediately means तुरंत। And tapping the letter on the desk commented, लेटर को अपना डेस्क में रखते हैं और फिर कहते हैं, what faith, क्या विश्वास है, भगवान का ऊपर इतना विश्वास, I wish I had the faith। नाउ ही इज टेलिंग कि भाई मेरा भी अगर भगवान के लिए इतना फेथ होता था तो कितना अच्छा होता था। ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, देखिए कितना विश्वास है कि उन्होंने ही हैज स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू द गॉड, मींस दैट मच ऑफ फेथ ही इज हैविंग ऑन गॉड। देखो हम लोगों को पता है कि हम लोगों कभी व्हेनेवर वी आर इन ट्रबल तो हम लोगों भी भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान के बोल मीन्स गॉड को हम लोगों कहते हैं कि भगवान ये कर दो वो कर दो, फिर भी वी जस्ट डोंट राइट एनी लेटर टू द गॉड। हम लोगों भगवान के लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखता है, बिकॉज सी दिस मैन इज हैविंग टोटल फेथ ऑन गॉड। चलो, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तब पोस्टमास्टर जी ने सोचा कि भगवान का ऊपर इनका विश्वास इतना ज्यादा है, इस विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, वी शुड नॉट ब्रेक द फेथ। देखिए लेटर टू गॉड, जस्ट गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है, भाई कहां भेजेगा लेटर को, तो
तो यहीं पोस्ट ऑफिस में लेटर रह के खत्म हो जाएगा और लेंचो का विश्वास भी टूट जाएगा, क्योंकि भगवान से तो कोई पैसा देने वाला तो नहीं है। उसी समय में क्या किया, पोस्टमास्टर जी हैज ब्रॉट अप विथ एन आइडिया, उनका दिमाग में एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, कम ऑन लेट अस आंसर द लेटर, लेटर का जवाब देते हैं, लेट अस आंसर इट। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो उस समय में उसे पता चला कि इस आंसर को देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। खाली गुडविल और इंक एंड पेपर से नहीं चलेगा, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, he stuck to his resolution, resolution means decision। he asked for money from his employees, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई मेरा जो एम्प्लॉइज है उनसे पैसा इकट्ठा करते, क्योंकि इन द लेटर में क्या लिखा था, गॉड यू गिव मी 100 pesos। he himself gave part of his salary, तो अपना सैलरी का थोड़ा हिस्सा, पार्ट ऑफ द हिस्सा वो देते हैं। and several friends of his were obliged, means he has asked them, requested them, obliged means requested to give something for an act of charity, as a दान means दान देने का जैसा, आप लोगों प्लीज कुछ पैसा दीजिए so that लेंचो का जो विश्वास है वो ना टूटे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, तो 100 pesos इकट्ठा करना इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। शायद उस समय में 100 पीसो का जो अमाउंट है शायद बहुत ज्यादा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर only a little more than half, थोड़ा हाफ से कुछ ज्यादा he has decided to give to the farmer। he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। और वहां पर क्या करते हैं, लेंचो को पैसा भेजते हैं and he has written the envelope के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखते हैं और वहां पर पैसा भेज के वहां पर एक सिग्नेचर कर देते, जस्ट गॉड, भगवान बोल के भेज देते लेटर को। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। तो उस दूसरे संडे में लेंचो आ जाते, थोड़ा अर्ली आ जाते और आके पूछते हैं कि उनके लिए कोई लेटर है या नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। तो उन्होंने पोस्टमास्टर जी ने सोचा कि भाई मैंने तो he was satisfied, तो मैंने बहुत बढ़िया एक काम किया, he has done a very good work because he has given the money। No, full money was not able to give, but part of the money he has given। तो लेंचो का कुछ ना कुछ तकलीफ तो कम होगा ना। See, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो को कोई भी सरप्राइज नहीं था, लेकिन देखिए हम लोगों का पास अगर ऐसा कोई सील्ड एनवलप में भगवान का लिखा हुआ लिफाफा लिखा हुआ है उसमें, और इफ देयर इज सम मनी, तो हम लोगों को थोड़ा सा क्या होगा, मीन्स वी विल बी वेरी मच स्ट्रेंज, भाई भगवान ने कैसे पैसा दिया। बिकॉज हम लोगों में वी नो कि यार फेथ तो सभी में है, लेकिन ये तो कंप्लीट फेथ है कि भगवान से पैसा भी आ रहा है। ही वॉज हैविंग दैट मच ऑफ फेथ। तो इन्होंने इनके मैंने ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस था उनका। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्से हो जाते, बिकम्स एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो मनी गिनते हैं ही बिकम्स वेरी एंग्री। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड। गॉड से कोई मिस्टेक तो होना नहीं चाहिए, और आई थिंक ही हैज नॉट डिनाइड ऑल्सो, मुझे नहीं देंगे ये बात भी गॉड नहीं कहे है, मीन्स गॉड माइट नॉट हैव टोल्ड दिस वन। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो लेंचो कहते हैं कि नॉर कुड हैव डिनाइड, मीन्स भगवान ये डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने जो रिक्वेस्ट किया भगवान का पास, आई नो दैट भगवान गॉड विल नॉट डिनाई माई रिक्वेस्ट। ओके, ही वॉज हैविंग कंप्लीट फेथ। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। तो वो फिर जाते हैं विंडो का पास, वहां पर जाके एक पेपर मांगते हैं और इंक मांगते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तो तब का जमाने में पोस्ट ऑफिस में एक राइटिंग टेबल होता था, मीन्स वेयर द पीपल यूज्ड टू राइट। अभी भी आप अगर पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि वहां पर एक लिखने का जगह रहता है, यू कैन राइट अ लेटर, एनीथिंग। ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow, means he was very angry। wrinkling of his brow मैंने ये जो व्यक्ति थे ये बहुत ही गुस्सा हो गया था, was very angry, caused by the effort he had to make to express his ideas।
तो अपना आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत गुस्से से अपना आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे थे लेटर में. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. उसका बाद क्या करते हैं, स्टैम्प खरीदते हैं और उसको अपना माने टंग से लिक करते हैं, एंड ही स्टैम्प्स इट ऑन द एनवलप. यू नो, जो स्टैम्प्स रहते हैं उसमें थोड़ा सा ड्राई गम रहता है, अगर आप उसको मॉइस्ट करेंगे, ये हैबिट तो सही नहीं है, कभी उसको चाटना नहीं चाहिए. उसको टेक सम वाटर, पानी ले सकते हैं आप, स्पॉन्ज में रहता है पानी, तो वहां से पानी लेके भी आप स्टैम्प को लगा सकते हैं. तो लेंचो ने क्या किया, अपना जीभ से ही चाट लिया स्टैम्प को और एनवलप में अपना फिस्ट देके ऐसा करके चपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में लेटर गिरा तो पोस्टमास्टर जाके लेटर को खोलते हैं. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी. मेरे पास खाली 70 पीसोज ही आया है. तो पहले ही तो आप लोगों को पता था कि पोस्टमास्टर का पास उतना पैसा तो था नहीं, तो इसके लिए वो जितना गैदर कर पाया था, यानी यू सी ही हैज ऑलमोस्ट गिवन द मैक्सिमम पार्ट ऑफ हिज सैलरी. अपना सैलरी भी दिए थे और बाकी लोगों से कलेक्ट करके ही वाज अनेबल टू कनेक्ट दैट 100 पीसोज, बट एनी हाउ 70 पीसोज ही हैज अरेंज, और उन्होंने अपना इनिशिएटिव लेके ही हैज गिवन दिस वन टू लेंचो. लेकिन लेंचो ने गलत समझा. लेंचो हैज कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड दिस वन. He is telling, send me the rest since I need it very much. आप जो बचा हुआ पैसा है प्लीज जल्दी भेजिए और आप मुझे, but don't send it to me. See, उसने फिर से कहा है, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. ये लोग धोखेबाज है, इन लोगों फ्रॉड है. ये पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज है, दे आर फ्रॉड्स. क्या पोस्ट ऑफिस का जितना भी एम्प्लॉयज था, इवन द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, ही हैज टेकन द इनिशिएटिव टू कलेक्ट दिस मच ऑफ मनी एंड ही हैज गिवन दिस वन टू लेंचो. लेकिन ये पूरा गलत समझ जाते हैं कि भाई भगवान, आपने तो पूरा पैसा भेजा होगा, आपने 100 पीसोस शायद भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज है, ये इन्होंने 30 पीसो शायद इन लोगों ने हटा दिया है अपने लिए, और मुझे खाली 70 पीसोस दिए हैं. एंड सी, इतना फेथ था लेंचो का भगवान का ऊपर, और ह्यूमन बीइंग का ऊपर लेंचो का कुछ भी फेथ नहीं था. तो दिस इज द स्टोरी. चलो इसका थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन वगैरह को भी थोड़ा देख लेते हैं. लेंचो, ही इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. ही हैज अ टोटली लव फॉर हिज फैमिली. अपना फैमिली को बहुत प्यार करते थे, और ये ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति थे. इज अ वेरी पॉजिटिव टाइप ऑफ पर्सन. हेलस्टोन स्टॉर्म्स का कारण उनका जो पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ हेलस्टोन, बट ही डज नॉट लूज होप. एंड उनका जो लास्ट होप था, इट इज द होप ऑन गॉड. उनका लास्ट होप गॉड का ऊपर था, भगवान का ऊपर पूरा विश्वास था. एंड वो बहुत पॉजिटिव थे और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भगवान उन्हें हेल्प करेंगे. तो ही इज हैविंग अ पॉजिटिव पर्सन. तो वो पॉजिटिव व्यक्ति थे. एन इनोसेंट मैन, बहुत ही इनोसेंट था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इस तरह का देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड. भगवान का जैसा कोई लिविंग पर्सन होता नहीं है हु कुड सेंड हिम मनी, जो उनको पैसा भेज सके. फिर भी वो विश्वास था उनका. यहां से पता चलता है कि वो बहुत इनोसेंट थे. इज अ वेरी इनोसेंट मैन, और वो भगवान का ऊपर बहुत विश्वास करता था. इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन गॉड, स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन गॉड. जब उन्हें 70 पीसोस आया, मीन्स व्हेन ही हैज गॉट दैट 70 पीसोस, तो वो फिर वापस लिखते कि भगवान, आप मुझे डायरेक्टली ये पैसा मुझे भेजिएगा, क्योंकि मुझे पोस्टमैन, माने ये जो पोस्ट ऑफिस में जितना भी एम्प्लॉयज है, दे आर ऑल क्रूक्स. इन लोगों का ऊपर मुझे कोई विश्वास नहीं है. ये था लेंचो का कैरेक्टर. अब हमारा पोस्टमास्टर कैसे थे? पोस्टमास्टर बहुत ही पैशनेट टाइप का व्यक्ति थे, वेरी सिंपैथेटिक, एंड इज अ वेरी गुड हार्टेड मैन. तो जब वो लेटर को मिलता है उन्हें, व्हेन ही जस्ट गेट्स द लेटर, ही वाज मूव्ड बाय द कंडीशन ऑफ लेंचो. तो लेंचो का कंडीशन देख के बहुत ही मूव्ड हो जाते हैं. एंड ही वाज वेरी अमेज्ड, सरप्राइज्ड कि भाई लेंचो का इतना फेथ है, मींस इतना फेथ है भगवान का ऊपर. तो वो बहुत आश्चर्य हो जाते, इज वेरी सरप्राइज्ड. तो वो क्या करते हैं, बहुत ही मीन्स सिंपैथेटिक पर्सन थे.
दिल के बहुत अच्छे थे। दैट इज वाई व्हाट हैपेंड, ही डिसाइड्स कि भगवान का ऊपर जो लेंचो का फेथ है इसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट ब्रेक दैट वन। तो वो क्या करते, इवन अपना सैलरी का हाफ सैलरी दे देते हैं और बाकी जो एम्प्लॉयज है उन लोगों से पैसा गैदर करते हैं। एंड व्हाट हैपन, एनी हाउ जस्ट एबल टू गैदर 70 पीसोस और लेंचो को वो पैसा दे देते हैं। यू सी, लेकिन अपना नाम भी नहीं बताते वहां पर, एम्प्लॉय माने अपना एनवलप में ही हैज नॉट गिवन हिज नेम ऑल्सो, वहां पर क्या लिखते हैं, गॉड, भगवान का नाम ही लिख देते हैं। दिस शोज दैट ही डिड नॉट वांट एनी फेम और प्रेज फ्रॉम लेंचो, लेंचो से कोई लेंचो से कोई फेम या कोई भी प्रेज नहीं चाहते थे। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर। ओके ओके चैम्प्स, तो फिर टेक्स्ट बुक को साथ में रख के मेरा वीडियो ठीक से देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए, जितना भी हार्ड मीनिंग्स है उस हार्ड मीनिंग्स को पढ़िए। ओके, एंड गो थ्रू द टेक्स्ट वेरी प्रॉपरली। और मुझे ये पता है, विश्वास है कि आपको स्टोरी जरूर पता चल गया, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। और मन लगा के पढ़िए एंड जस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स जो कहते हैं उनको सुनिए, एंड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, लेंचो का जैसा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, वेरी पॉजिटिव माइंडेड होना पड़ेगा कि हम लोगों करेंगे, हम लोगों कर सकेंगे। ओके चैम्प्स, बाय टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।